السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں طیبہ فراز اور میں ہوں نزہت نور۔ علاقائی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کشمور میں پولیس نے خفیہ اطلاع پر ذوالفقار شاہ محلہ میں کارروائی کرتے ہوئے 3 افغان خاندان حراست میں لے لیے۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار خاندان غیر قانونی طور پر مقیم تھے اور غیر قانونی دستاویزات کے ذریعے شناخت کی گئی۔ حراست میں لیے گئے خاندانوں کی ڈی پورٹ کی تیاریاں جاری کر دی گئی ہیں۔ حاصل پور میں بہاولپور روڈ پر تیز رفتار ٹرالے نے چنگچی رکشے کو ٹکر مار دی۔ حادثے کے نتیجے میں رکشہ ڈرائیور جاں بحق ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم جائے حادثہ پر پہنچی اور لاش کو تحویل میں لے کر ضروری قانونی کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ رینالہ خرد کے نوائی گاؤں 28-1 میں زرعی زمین کے تنازع پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور شہری گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم نے زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد تشویشناک زخمیوں کو ساہیوال ریفر کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ چونیا میں نجی اسکول وین کے حادثے میں دوسری جماعت کا طالب علم عبداللہ جاں بحق ہو گیا۔ حادثہ نجی اسکول وین کے غیر تربیت یافتہ ڈرائیور اور ناقص حالت والی گاڑی کے باعث پیش آیا۔ والدین کا کہنا ہے کہ اسکول وینز میں چیک اینڈ بیلنس ناکام ہو گیا، معصوم بچوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے مطالبہ کیا کہ اسکول وینز کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات روکے جا سکیں۔ ادھر ٹنڈوالہ یار کے 20 سیکشن تھانے کی حدود میں 2 گروہوں کے درمیان فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک شخص موقع پر جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہوا۔ فائرنگ کے بعد زخمی کو فوری طور پر سول اسپتال ٹنڈوالہ یار منتقل کیا گیا ہے، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد اسے تشویشناک حالت میں حیدرآباد ریفر کر دیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ مزید گرفتاریوں اور قانونی کارروائیوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کے احکامات پر اوباڑو رونتی کچے میں جاری نجات مہران آپریشن کے دوران پولیس کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ سنگین مقدمات میں مطلوب 2 خطرناک ملزمان نے قانون کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان قتل، دہشت گردی، پولیس مقابلہ اور دیگر سنگین جرائم کے متعدد مقدمات میں مطلوب تھے۔ سرنڈر کے موقع پر ملزمان نے جرائم کی دنیا چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بھی قانون کے سامنے پیش ہونے کا پیغام دیا۔ قصور مصطفیٰ آباد میں 5 سالہ بچی سے زیادتی کے بعد مرکزی ملزم طارق سی ڈی مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ جی ہاں، ملزم طارق کو ہلاک کرنے کے لیے اس کی نشاندہی کے دوران ساتھیوں نے چھڑوانے کے لیے فائرنگ کی، جس سے ملزم ہلاک ہو گیا۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے طارق کے خلاف 2 طارق کمسن بچیوں سے دیگر زیادتی بھی ثابت ہوئی ہے۔ ملزم آئس کے نشے کا عادی اور بچیوں سے زیادتی کا ملوث پایا گیا ہے۔ پولیس نے واقعے کی مزید تحقیقات شروع کر دی۔ دوسری جانب فیصل آباد میں ریسکیو اور پولیس کو بم کی جھوٹی اطلاع دینے والے ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کر لیا گیا۔ حساس اطلاع ملنے پر پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچی اور علاقے میں سرچ آپریشن کیا، تاہم اطلاع بوگس ثابت ہوئی۔ ملزم نے کال کے بعد اپنا موبائل نمبر بند کر کے فرار ہونے کی کوشش کی۔ ایس ایچ او تھانہ مدینہ ٹاؤن نے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی۔ سرکل آفیسر اینٹی کرپشن ساہیوال نے سیکرٹری یونین کونسل محمد بوٹا کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ساہیوال بشارت نبی کی ہدایات پر کارروائی کی گئی ہے۔ ملزم نے شہری محمد اقبال سے برتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے عوض 10,000 روپے رشوت وصول کی، جو موقع پر برآمد کر لیے گئے۔ مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ ادھر ہری پور پولیس نے خطرناک ڈکیت گروہ کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر لیا۔ ناکہ بندی کے دوران ملزمان نے پولیس پر فائرنگ شروع کی، تبادلے میں 2 موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گئے۔ زخمی ملزمان کو تحصیل اسپتال خانپور منتقل کیا گیا اور مختلف نوعیت کے جرائم کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔
सोहाओ के जीटी रोड चकवाल मोड़ पर कायम इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स में सहरी के वक्त लाखों रुपए मालियत की कीमती अशिया चोरी हो गई। नामालूम चोर दुकान के ताले और शीशे का मरकजी दरवाजा तोड़कर कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया गाड़ी में मुंतकिल करके फरार हो गए हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौका पर शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज किया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। मंडी उस्मानवाला में जंगा सिंह वाला के इलाके में दिन दिहाड़े डाकुओं ने दूध फरोश से 1.5 लाख रुपए नकद, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट लिया। थाना पुलिस उस्मानवाला चाय वकुआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर रही है। मुतासरा शख्स ने डीपीओ कसूर से मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है ताकि आइंदा शहरी महफूज रह सके। एसएसपी सखर की हिदायत पर जिला भर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और सरहदी कशीदगी के पेश नजर जिला भर में हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। पुलिस अफसरान को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफगान बशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने और इबादत गाहों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत की गई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, मुजफ्फरगढ़ में बासर अफराद ने मजदूर फयाज हुसैन के घर पर हमला किया, खवातीन पर तशद्दुद किया और फयाज हुसैन को अगवा कर लिया। मुतासरा खानदान के मुताबिक हमलावरों ने चादरों चार दीवारी के तकद्दुस पामाल के खवातीन पर तशद्दुद किया और फयाज हुसैन को कुछ घंटों तशद्दुद के बाद अहले इलाका की मुदाखलत से रिहाई मिली। पुलिस मौका पर देर से पहुंची और बासर मुलजिमान के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं की गई। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब और डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से फौरी और गैर जानिबदार कार्रवाई का मुतालबा किया। दूसरी जानिब गढ़ी खैरों के नवाई गांव दादूपुर का बहादुर फौजी जवान वतन की हिफाजत करते हुए चमन बॉर्डर पर जामे शहादत नोश कर गया। शहीद जवान मामूल की ड्यूटी अंजाम दे रहा था कि दुश्मन की फायरिंग से जामे शहादत नोश किया। पाक फौज के दस्तों ने फौजी एजाज के साथ लाश को सुपुर्दे खाक किया। कौमी परचम में लिपटी मैयत को सलामी दी गई और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। सियासी और समाजी शख्सियात ने शहीद की कुर्बानी को सलाम पेश किया। हरीपुर में अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहसील गाजी में मुज़र सेहत खुराक और इस्तेमाल शुदा तेल के खिलाफ खसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया। दौरान चेकिंग कुकिंग ऑयल के मेयार को जांचा गया और जला हुआ और बार बार इस्तेमाल शुदा तेल तल्फ कर दिया गया। दुकानदारों को सख्ती से हिदायत की गई कि गैर मेयारी तेल के इस्तेमाल से गुरेज करें और सफाई के मेयार को यकीनी बनाएं ताकि अवाम की सेहत महफूज रह सके। उधर हैदराबाद में आई ऑन और अब्दुल करीम घांगरू वेलफेयर के बचत बाजार का दौरा शहर की मारूफ शख्सियात ने किया। बचत बाजार में आटा, चावल, चीनी, घी, दालें, सब्जियां और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खसूसी रियायत के साथ फराहम की जा रही हैं। प्रेस क्लब हैदराबाद के सदर जुनेद खानजादा, स्मॉल ट्रेडर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर सलीम मेमन और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने स्टॉल्स का दौरा किया और इंतजामिया की काविशों को सराहा। असिस्टेंट कमिश्नर तिलहार ने रमजान शरीफ के दौरान जायद कीमत वसूल करने वाले ताजरों के खिलाफ मौका पर जुर्माना आयद किया। मुख्तलिफ करियाना, जनरल स्टोर, सब्जी और फ्रूट फरोशों से जायद निर्ख वसूल करने पर जुर्माना लिया गया और आइंदा के लिए तनबिया की गई कि अगर कोई ताजर जायद कीमत वसूल करेगा तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर असिस्टेंट मुख्तार कार, मीर असद टालपर और तलहार पुलिस के एहलकार भी मौजूद थे। रमजान के बाबरकत महीने में दादू शहर की मार्केटों में सब्जियों की कीमत में कुछ कमी देखने में आई है। शहरियों का कहना है कि फलों की कीमतें रमजान में आसमान से बातें कर रही हैं और खरीदारी के बजाय सिर्फ देखने तक महदूद हो गई हैं। अवाम ने मुतालिबा किया है कि सरकारी निर्खनामों पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए ताकि मुनाफाखोरी का सिलसिला रोका जा सके और रमजान में कीमतों का इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाए। उधर घारू में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड 5 बटालियन के ज़रिए इत्तेमाम रमजान के बाबरकत महीने में मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। इज्तिमाई इफ्तारी में मुकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अफसरान का कहना था कि रमजान इसार और हमदर्दी का दर्स देता है और जरूरतमंदों की मदद हम सब की जिम्मेदारी है। मुस्तहिकीन ने इक़दाम को सराहा और मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की।
एसी शाहपुर यसरा सुहेल बट ने पेरा फोर्स के हमराज सवारियों के मेन बाजार का अचानक दौरा किया और एशिया खुरनोश की कीमतों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा की हिदायत पर किए गए इस सरप्राइज दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि तमाम अशिया खुरनोश सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फरोख्त की जाएं। जायद कीमतें वसूल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं होंगे। बाजार में तजावुजात को फौरी तौर पर खत्म किया जाएगा और खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अंजुमन सादात पाकिस्तान फैसलाबाद के ज़ेरे एहतमाम रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में 121 मुस्तहिक सादात घरानों में राशन के गिफ्ट तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ फरक नकवी की इस रिपोर्ट में। राशन के पैकेट अंजुमन सादात के सदर सैयद अतर हुसैन बुखारी, सैयद सगीर हुसैन बुखारी, सैयद गुलाम मुहिउद्दीन काज़मी, सैयद करामत हुसैन बुखारी और सैयद दिलशाद हुसैन बुखारी के अलावा दीगर तकसीम किए। अंजुमन के अरकान ने कहा कि सादात ज़कात और सदका से मुबर्रह है, इसलिए हम सादात के तावन से हर साल अपनी मदद आपके तहत मुस्तहिक सादात घरानों में राशन तकसीम करते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज समेत दीगर वज़रा आला से अपील की है कि मुल्क भर में मुस्तहिक सादात घरानों के लिए खसूसी फ़ंड कायम किया जाए। सदर अंजुमन सादात सैयद अतर हुसैन बुखारी ने बताया, ख्याल में कुछ 40-45 साल से हम ये राशन का सिस्टम चला रहे हैं और तक हमने 121 ख़ानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का इंतज़ाम किया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सादात फैमिलीज़ के लिए सिर्फ है और सादात ही इसमें हिस्सा डालते हैं और ये तमाम मेंबरान की काविश है जो सारे मिल के इसको हर साल सार अंजाम देते हैं। सादात पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट सैयद करामत हुसैन बुखारी साहब हुकूमत पंजाब से इल्तमास है कि मादनियात पर शरई तौर पर सादात का खुमस बनता है, उसके लिए बिल पेश किया जाए और सादात खानदानों की कफालत की जाए। आप लोगों से और कई बार ये हमारे प्लेटफॉर्म से ये बात हुई भी है, लेकिन खुदारा इतनी महंगाई में सादात पिस गए हैं, इनके लिए कोई ज़रूरी इनिशिएटिव लें। इफ्तिखार हुसैन नकवी चेयरमैन मसालों को मुजाब रवादारी काउंसिल और यहाँ पे आया था इस निज़ाम को देखने के लिए। बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर जो गुर्बत से तंग लोग हैं, जिनके घर में रमज़ान है लेकिन राशन नहीं है, उनकी भरपूर तरीके से मदद की जा रही है, जिसके लिए अंजुमन सादात जो है वो काबिल सताइश है और तारीफ़ की हकदार। रुख नकवी, डिविजनल ब्यूरो चीफ फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब खानेवाल में पाकिस्तान बैतुल माल और वेलफेयर फाउंडेशन के इश्तराक से 500 मुस्तहिक घरानों में रमजान राशन पैकेट्स तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे राशिद रहमानी की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मलिहा रशीद ने राशन तकसीम किया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मोहम्मद उमर राना और असिस्टेंट डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। राशन पैकेट में 80 किलो का आटा, 5 किलो दालें, 5 किलो चीनी, 5 किलो ऑयल और खजूरें शामिल थी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि मुस्तहिकीन का सहारा बनना सदका जारिया है, जबकि पाकिस्तान बैतुल माल और हयात वेलफेयर फाउंडेशन का इक़दाम काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि डोनर किंग सलमान की जानिब से राशन फराहमी इंसान दोस्त की रोशन मिसाल है और जिले इंतजामिया शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में अमदाद की फराहमी को यकीनी बना रही है। कैमरामैन टीम के साथ राशिद रहमानी, TV टुडे, खानेवाल। डिप्टी कमिश्नर नाज़रीन, रमजानुल मुबारक का पहला अशरा मुकम्मल होने को है, मगर मुख्तलिफ इलाकों में गैस की मुसलसल बंदिश के बाइस रोजादारों को सहरी और अफ्तारी के वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन सुमरो की इस रिपोर्ट में। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने का पहला अशरा एहतमाम के करीब पहुंच गया है। नौशहरा फरोज जिले भर में गैस की तवील और गैर एलानिया बंदिश ने रोजेदारों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा कर दिया है। सहरी और इफ्तारी जैसे अहम औकात में गैस की अदम दस्तयाबी के बास घरेलू खवातीन को शदीद परेशानी का सामना है और शहरी मजबूरन होटलों या महंगे मुतबादिल ईंधन लकड़ियों और LPG गैस का सहारा लेना पड़ रहा है, जिस पर शहरियों का कहना है कि ना शहर में गैस है, ना इफ्तार करने के टाइम है। जैसे घर में जो खवातीन है उनको शहर के टाइम भी सख्त मुश्किल का सामना करना पड़ना है। तो हम वफाकी हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं, ये बारह महीना चल रहा है, शहर और इफ्तार के दरमियान जो है ना लोड शेडिंग खत्म किया जाए ताकि जो खाना पकाने खवातीन हज़रात उनको रिलीफ मिल सके। चांद जब से देखा है तो गैस की बहुत लोड शेडिंग है। जब जिले नौशहरा फरोज में पेड़ अभी तक गैस को ना हुई
पर हाणे बि कोन्हे। हींअर जीअं त रमज़ान जो भलो महीनो नज़र आयो आहे। रात गई और सुबह सवेर गैस का प्रेशर न होने के बराबर होता है, जिससे बर वक्त सहरी तैयार करना मुश्किल हो गया है, जबकि इफ्तारी के वक्त भी यही सूरत हाल बरकरार रहती है। कई इलाकों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और रोजेदार बुनियादी सहूलत से महरूम है। मुतासर मकीनों ने आला हुकाम और सुई गैस इंतजामिया से मुतालबा किया कि रमज़ान मुबारक के बाकी दिनों में खुसूसी इक़दाम करते हुए सहरी इफ्तारी के औकात में गैस की बिला तहल फराहमी यकीनी बनाई जाए, ताकि अवाम को दरपेश अजियत का खात्मा हो सके। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन, सुमरो, टीवी टुडे, नौशहरा, फिरोज। रमजान मुबारक की आमद के साथ शहरी सहरो अफ्तार के लिए तैयारियां करने के साथ इबादत के लिए भी सफ़े, मुसल्ले और जगह खरीदने पर मसरूफ हैं। मज़ीद जान लेंगे शेख उबैद रजा की इस रिपोर्ट में। रमज़ान मुबारक रहमत और बरकतों का महीना और इस मुकद्दस महीने में इबादत का शौक़ अपने अरूज पर पहुँच जाता है। खानेवाल में भी शहरी नमाज तरावी और दीगर इबादत के लिए खुसूसी तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में सफ़े जाए नमाज और मसल्लों की दुकानों पर ख़रीदारों का खासा रश देखने में आ रहा है। दुकानदारों के मुताबिक रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही तैयारियों का आगाज़ कर दिया जाता है और रमज़ान मुबारक में कारोबार में नुमाया इजाफा देखने में भी आ रहा है। शहरियों का कहना है कि रमज़ान मुबारक में इबादत के लिए घर और मसाजिद दोनों जगह पर इजाफी इंतजाम किए जाते हैं, इसीलिए नई सफ़े और जाए नमाज खरीदना भी ज़रूरी समझा जाता है। रमज़ान शरीफ का महीना है, बाबरकत वाला महीना है। इंशाअल्लाह ताला मस्जिद के लिए मुझे सफ़ चाहिए, बहुत अच्छी सफ़े हैं इनके पास, कलर भी बहुत अच्छे हैं, मुझे पसंद है। इंशाअल्लाह ताला मैं इनके पास से लेके जाऊँगा। शहरियों का कहना है कि रमज़ान मुबारक न सिर्फ रूहानी बरकतों का सबब बनता है, बल्कि मकामी सतह पर छोटे कारोबार के फ़रोग का भी ज़रिया बनता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त खानेवाल मदनी सब सेंटर की दुकान पे आया हूँ और यहाँ पे रमज़ान, आपको जैसा पता है कि रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ा रखने के साथ साथ इबादत करने का मज़ा कुछ अलग ही आता है। तो घर के सफ़े जाए नमाज मुसल्ले वगैरह पुराने हो चुके हैं, बच्चों की फरमाइश है कि नई सफ़े मुसल्ले जाए नमाज ला के दिए जाएँ। रमज़ान मुबारक में ख़ास इबादत को नई सफ़ों और मुसल्लों से अल्लाह के हजूर सजदा बसजूद होकर सजदा करना किसी नेमत से कम नहीं है, इसलिए नई सफ़ों और मुसल्लों को खरीदारी कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा उबैद रजा, डिवीजन रिपोर्टर, टीवी टुडे, खानेवाल। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पत्तोकी में अमीर जमात इस्लामी बस्ती पंजाब मौलाना जावेद कसूरी ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्की सूरत हाल, पाक अफगान ताल्लुकात और गजा समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। जामे मस्जिद करीम पार्क के सफा मुकद्दम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना जावेद कसूरी ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बाहमी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने चाहिए और अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। इस मौका पर मुस्तहिक खानदानों में रमजान पैकेज भी तकसीम किया गया, जबकि अल खिदमत फाउंडेशन, किसान बोर्ड और जमात इस्लामी के रहनुमा, कारकुनान और सहाफियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। सेबी में डिप्टी कमिश्नर मेजर रिटायर्ड एलियास की सदारत में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ग्रुप कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में उस्ताज़ा की हाजिरी, तलबा की इनरोलमेंट, जारी तरक्याती मंसूबों और नई तलीमी साल की तैयारियों पर गौर किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने गैर हाजिर उस्ताज़ा की तनख्वाहों से कटौती के अहकाम जारी किए और जोर दिया है कि तलीमी मयार की बेहतरी और तलबा की ज्यादा से ज्यादा शमूलियत हर सूरत यकीनी बनाई जाए। बोकाड़ा में हजरत करमा वाली सरकार दरबार के सालाना उर्स मुबारक की 3 रोजा तकरीबात इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गई हैं। हजारों ज़ायरीन ने इज्तिमाई दुआ में शिरकत की है। सजादा नशीं और मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम की क़यादत में उम्मत मुस्लिमा की सलामती, मुल्क की तरक्की और अमन व इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। दरबार में सिसकियों और आमीन की सदाओं ने फिजा को मजीद बाकैफियत बना दिया। सहरी और अफ्तारी के इंतजामात के साथ महफिल नात, जिक्र, अस्कार और रूहानी बयानात ने हाज़रीन के ईमान को ताज़गी बख्शी। शाहजमाल खानगढ़ के मसरूफ तरीन चौक में गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट अड्डों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शहरी मसाइल सामने आ गए हैं। शहरियों के मुताबिक रोजाना ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है और हादसात में भी इजाफा हो रहा है। रेडी बानों और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान झगड़ों के वाकयात भी सामने आ रहे हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी अड्डे फौरी खत्म करके ट्रांसपोर्ट और रेडी बानों को मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल किया जाए और जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
मुस्तफाबाद में लारी अड्डा पर पर्ची फीस वसूल करने वाले 62 ठेकेदार ने फुटपाथ पर कब्जा बरकरार रखकर स्कूल और कॉलेज आने जाने वाले बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी। चंद रोज कबल डिप्टी कमिश्नर कसूर के नोटिस पर कैबिन हटाया गया था, लेकिन 62 ठेकेदार के मुलाजमीन ने कुर्सियां रखकर फुटपाथ पर कब्जा बरकरार रखा। शहरियों ने मुतादिद बार शिकायत दर्ज कराई हैं, लेकिन मुलाजमीन शहरियों से बदतमीजी करते हैं। डिप्टी कमिश्नर और दीगर आला हुकाम से फौरी नोटिस और स्कूल टाइम में फुटपाथ को क्लियर करने का मुतालिबा किया गया है। बहावलपुर की मकबूल कॉलोनी के रिहायशी सीवरेज सिस्टम की नाकामी और मसाइल से दो चार हैं। शहरियों को रोजमर्रा जिंदगी में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं गुलाम मुर्तजा से। जी बताइएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर की मकबूल कॉलोनी में। यहाँ पर मकबूल कॉलोनी के इलाका मकीन सरापा एहतजाज है, यहाँ एहतजाज किया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जाने की कोशिश करते हैं कि इस एहतजाज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या मुतालबा है, बताइएगा। अरे हमारी वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि हमारी मकबूल कॉलोनी का ये दरीना मसला है, कोई 1 साल या 2 साल से नहीं, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से। एक तो रास्तों का मसला है, हमें आने जाने का बड़ा मसला है, हमारा रास्ता कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद जो इसमें सीवरेज का है, इतना पानी और इतने गटर लाइन और इतने गटर उबल रहे हैं, सारे उबल रहे हैं, बच्चों गिरने का खतरा है। हम नमाज पढ़ने जाते हैं, रास्ते में कपड़े ख़राब हो जाते हैं, फिर जाके हम जो है अपना कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आते हैं। तो इधर से कोई कभी उधर कोई छुप के खड़ा होता है, कोई उधर खड़ा होता है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई पास से बच्चा गुजरे, कोई मोटरसाइकिल गुजरे तो हमारे कपड़े न गंदे हो जाए। हमारी सबसे गुजारिश है आला हुकाम से कि हमारा ये मसला हल किया जाए। और ये हमारी जनाजा गाह हमने अपने बल बोते पर मिट्टी शिट्टी ये सीधी करके बनाई थी, वो गटर का पानी सारे इलाके का पानी उधर जा इकट्ठा होकर जिधर गटर लाइन थी पुरानी, वो सारा उधर इकट्ठा है, वो सारा खतरे की बहस बना हुआ है। कोई बच्चा ना भी उसमें गिर जाए, कोई और नुकसान ना हो जाए। प्लीज़ हमारी ये रिक्वेस्ट है हम सब की कि ये हमारा मसला दरीना मसला है, ये सीवरेज लाइन का और रास्तों का ये हमारा हल किया जाए। मलिक ज़हीर साहब की बड़ी मेहरबानी होगी, उसको पहले भी हमने रिक्वेस्ट की थी, इधर आए थे तो उनको बताया था कि ये मसला वादा करके गए थे कि हम आपका ये मसला हल करेंगे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है आज जाना हम सब की कि ये हमारा मसला हल किया जाए। यहाँ जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हम सियासी और इंतजामिया के पास बार बार जा चुके हैं, लेकिन ये मसाइल हल नहीं हो रहे। हम वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा कर रहे हैं कि सीवरेज के मसाइल को हल किया जाए ताकि हम परेशानी से बच सकें। जी। कोटरी में पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों के खिलाफ बरफ्त बरादरी को खवातीन ने कराची नहर के करीब एहतजाजी धरना देकर सड़क ब्लॉक कर दी। एहतजाज के बाईस सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे फैक्ट्रियों, स्कूलों, कॉलेजेस, अस्पतालों, अदालतों और दीगर मुकामात पर जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुतालिबा किया कि गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा किया जाए। हैदराबाद में नौजवान फैसल शाह कत्ल वर्सा ने लाश रखकर एहतजाज किया। वालिद मोहम्मद वकील ने कहा कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दे। वाक़े के बाद इलाके में सख्त खौफ व हिरास फैल गया और पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। उमरकोट में मुबैना हमलों और घरों पर कब्जे के खिलाफ सोलंगी बरादरी ने हैदराबाद के इलाके होस्ट्री में एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज में सोलंगी बरादरी, समाजी और सियासी कारकुनान और सहाफियों ने शिरकत की है। पुलिस और कब्जा माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि उमरकोट में सोलंगी बरादरी के घरों पर हमले, खवातीन पर तशद्दुद और जबरदस्ती बेदखली के वाकयात अफसोसनाक हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई करके मुतासरीन को इंसाफ फ्राहम किया जाए। कश्मीर में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में मारिका गज़बिल हक की रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने कौमी परचम उठा रखे और अफवाज पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। मुकर्ररीन का कहना था कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और खुदमुख्तारी की जामिन है। रैली शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरी और इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ की गई। टंडल जाम में टीवी टुडे न्यूज के रिपोर्टर और प्रेस क्लब अहदेदार नवाब अहमद पर मुबैना कातिलाना हमला किया गया। रात गए आदिल राजपूत और रहील राजपूत नामी अफराद नशे की हालत में आए और सहाफी पर फायरिंग की। खुशकिस्मती से सहाफी महफूज रहे। वाक़े के बाद पुलिस की गैर फौरी कानूनी तौर पर पहुंची है और टंडू जाम प्रेस क्लब के सहाफियों ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने फौरी मुल्जिमान की गिरफ्तारी और मुतासिरा सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालिबा किया है।
नसीराबाद के रिहायशी महबूब अली पनिहार कैंसर के मौसी मर्ज में मुब्तला हैं और जिंदगी और मौत की कशमकश में लड़ रहे हैं। एहलिया ने हुकूमत बलूचिस्तान मुखैर हजरात और समाजी तंजीमों से माली ताउन की अपील की है ताकि महबूब अली का इलाज जारी रह सके और बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर लौरा लाई ने BSDI फेज 2 मंसूबे के तहत डबल स्टोरी डिजिटल लाइब्रेरी और विमेन जर्नलिज्म का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर लौरा लाई, नदीम अकरम समेत ज़िलई अफसरान और मुकामी अमायदीन ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर मेरान बलोच का कहना था कि डिजिटल लाइब्रेरी के कयाम से तालिबात और खवातीन को जदीद तलीमी सहूलियात, ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज और इंटरनेट की सहूलियात मुयस्सर आएंगी। झंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िलई सेक्रेटेरिएट ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तजा ने किया। मीडिया से गुफ्तगू में सैयद हसन मुर्तजा ने बताया कि पार्टी क़यादत की हिदायत के मुताबिक पंजाब भर में नई तंजीमों के दफातर कायम किए जा रहे हैं। ज़िलई तंजीमों को फाल बनाया जा रहा है। माशरती मसाइल, किसानों और मजदूरों के मसाइल के हल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब के ब्यूटिफिकेशन ऑफ सिटी विजन के तहत आरिफवाला में 100 साल पुराने थाना अहमद यार को इस तरह खूबसूरत बनाया गया कि थाना कम और तफरीहगाह ज्यादा महसूस होती है। मज़ीद जान लेंगे मलिक हमाद अवान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब का जो विजन है ब्यूटिफिकेशन ऑफ द सिटी, शहरों को जो खूबसूरत बनाया जा रहा है, तज़ीन व आराइश की जा रही है, उसी हवाला से थाना अहमद यार को भी खूबसूरती कुदरती हुस्न से सजा दिया गया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और IG पंजाब के विजन के मुताबिक अवाम दोस्त पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए थाने को बहुत ही उम्दा माहौल फराम कर दिया गया है, जो कुदरती हुस्न से माला माल फूल हैं। जब यहाँ साइलिन आते हैं तो थाना कम और तफरीगाह जैसा माहौल ज़्यादा मुहैया होता है। तो इस हवाले से मेरे साथ एक यहाँ के मुकीम मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी बताइएगा। जी बेशक जो आपने बात की है बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो SHO साहब है ना, तो यासिम साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने जनाब थाने को एक पार्क की शक्ल दे दी है, जो कि थाना नहीं मालूम हो रहा, ज़्यादा पार्क ही मालूम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 साल तारीख में जो मेरी उम्र है 30 साल यहाँ पे मुझे भी हो गए हैं सियासत करते हुए, यहाँ पे कारोबार करते हुए। बहुत अच्छा निज़ाम इन्होंने किया आके, दरख्तों की कटाई छदराई जो है की है इन्होंने सब। जहाँ पे जंगल था बिल्कुल पहले, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत हो गया है। तो मैं कहता हूँ कि ये जो जितना भी है अप्रीशिएट करना चाहिए इनको, चौधरी साहब को, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जी एक अलमिया रहा है कि थाने को हमेशा खौफ की अलामत समझा जाता है, लेकिन चौधरी आशा मलिक का रिकॉर्ड है, ये जिस थाने में जाते हैं थाने को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। जब साइलिन यहाँ आते हैं तो वो अपना दुख दर्द जो है वो भूल जाते हैं वक्ती तौर पर, और इससे कुदरती हुस्न में खो जाते हैं। अहले इलाका ने SHO थाना अहमद यार चौधरी आशा मलिक के इस इकदाम को खूब सराहा और इसके साथ DPO पाक पतन जवेद इकबाल चद्दर से यह भी मुतालबा किया है इन्हें एजाज से नवाजा जाए। इसी के साथ जो थाना की अहमद यार। मलिक हमाद अवान की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेयर लाड़काना एडवोकेट अनवर अली लहर की जानिब से मुनक्किदा अफ्तार पार्टी में शिरकत की है। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिरकत को रमजान मुबारक की मुबारकबाद देते हुए कहा कि लाड़काना की बल्दियात की आदत नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो शहरी मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। डेरा गाजी खान में वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन सुथरा पंजाब के तहत इंसदादे कूड़ा क्रिकेट मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कचहरी चौक तक निकाली गई आगाही वॉक में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और जिला इंतजामिया के अफसरान समेत वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चीफ ऑफिसर राना शाहिद नदीम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सफाई मुहिम अवामी फलाह के लिए अहम कदम है और सफाई कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जुर्माने और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रुझान में असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए क़यादत सुथरा पंजाब वर्कर्स के साथ सफाई आगाही वॉक का आगाज किया गया। बाजारों और मेन रोड्स पर शहरियों को सफाई की अहमियत से आगाह किया गया। दुकानदारों को कूड़ा क्रिकेट मुकर्रर जगह पर डालने की हिदायत दी गई, जबकि सड़कों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दी गई। हैदराबाद में ऑल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के मरहूम सूबाई चेयरमैन अब्दुल रऊफ की पहली बरसी के मौका पर दुआया तकरीब मुनाकिद की गई। मुकर्रीन ने मरहूम अब्दुल रऊफ नजामानी के मजदूरों के हकूक के लिए खिदमात को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि वो एक दयानतदार, सादा और कारकुन दोस्त रहनुमा थे, जिन्होंने मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए हमेशा अमली किरदार अदा किया।
उधर कबीरवाला के निजी साइंस स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में असातिज़ा, वालिदैन और मौसूस मेहमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद नन्हे तलबा ने रमजान मुबारक की फजीलत, सबर, एसार और हमदर्दी के मौजू पर टेबलोस और मिली नगमे पेश किए। तलबा के शानदार कारकर्दगी को हाजरीन ने खूब सराहा। हासिलपुर थाना सिटी की पुलिस टीम फैसलाबाद में रेड के लिए जाते हुए हादसे का शिकार हो गई। मुतादिद अहलकार जख्मी, जबकि एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जी हाँ, हादसे के नतीजे में मुतादिद अहलकार जख्मी हुए हैं, जिनमें एक अहलकार की हालत तशवीशनाक है, जबकि जख्मियों में एक लेडी कांस्टेबल भी शामिल हैं। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। पाकपतन साहिवाल रोड पर तेज रफ्तार कार आलुओं से लोड ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे जाकर टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को बाहर निकाला। हादसे में 50 साल मोहम्मद यूसुफ जाँ बहक हो गया, जिनकी मैयत डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पाकपतन मुंतकिल कर दी गई। जख्मियों में से 2 अफराद को THQ अस्पताल साहिवाल मुंतकिल किया गया, जबकि एक जख्मी को मौका पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। शिकारपुर के इलाके फौजदारी थाना की हदूद में नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान ने घर के बाहर खड़े नौजवान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस ने लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। हासिलपुर के नवाही इलाके बस्ती रियासती लुड्डन में नौजवान ने मुबैना तौर पर घरेलू नाचाकी पर खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। अहले इलाका के मुताबिक वाकया घरेलू मामूली नाचाकी का शाखसाना बताया जा रहा है। रेस्क्यू 1112 की टीम ने मौका पर पहुंचकर नाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल की। वर्सा ने पोस्टमार्टम और मजीद कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया, जबकि कायमपुर पुलिस ने नाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। लियाकतपुर के इलाके तरंडा, मोहम्मद पनाह और मजाफाती इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला न रुक सका। 24 घंटों में 3 वारदातें रिपोर्ट हो गई। पुलिस ने अलग अलग मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि शहरियों ने DPO इरफान अली समूह से नोटिस लेकर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब टंडवाला यार्ड में टिकटॉक पर कमेंट्स के तनाजे ने खूनी रुख इख्तियार कर दिया। फायरिंग के वाक़े में एक शख्स जाँ बहक, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक दोनों ग्रुपों के दरमियान पहले से जमीन का तनाज़े ज़ेरे समात था। बादशाह सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर एक दूसरे को कमेंट्स करने पर तनाजा बढ़ गया, जो फायरिंग तक जा पहुंचा। फायरिंग के नतीजे में फुल बख्श कलोई जाँ बहक, जबकि वहीद कलोई शदीद जख्मी हो गया, जिसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल से हैदराबाद रेफर कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। सकर के इलाके में अवामी सहूलियात बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने इमरजेंसी वार्ड और फार्मेसी का मुआयना करते हुए हिदायत दी है कि मरीजों को बर वक्त और मियारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बादशाह मेन बाजार में कीमतों की चेकिंग के दौरान फल, सब्जी और परचून की दुकानों पर सरकारी निरखनामे चेक किए गए और जायद कीमतें वसूल करने वाले दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए। थरपारकर के शहर मिठी में महकमा तालीम की जानिब से पाक फौज और ऑपरेशन गज़ब लिल हक की हिमायत में रैली निकाली गई। गवर्नमेंट हाई स्कूल मठी से निकाली गई रैली में महकमा तालीम के अफसरान, असातिज़ा और मुख्तलिफ स्कूलों में तलबा ने शिरकत की और पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार किया। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और दहशतगर्दी नामंजूर के नारे लगाए। मुकर्रिरीन का कहना था कि दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम मुत्तहिद है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज। TV टुडे।